हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अर्चिता और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू एसिड बेस बैलेंस, जिसके अंदर हमने पढ़ा था व्हाट आर एक्चुअली एसिड्स एंड बेसिस। फिर हमने देखा था व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, पीके वैल्यू क्या होती है, पीएच क्या होता है, हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन क्या होती है, एंड देन वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर्स एंड इट्स मैकेनिज्म। सो आई जस्ट होप कि प्रीवियस वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। If you have any queries then do let me know in the comment section. I would really be happy to help you all. अगर अब तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अगर बात करेंगे इस टॉपिक की, सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ पीएच इन द बॉडी। अगर इसके वेटेज की बात करेंगे, सो यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पे इस पे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन। सो यस, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एज इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट सच कंटेंट फॉर यू गाइस। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स। बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ, विच इज द रेगुलेशन ऑफ पीएच बाय द बॉडी। सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच द बॉडी कैन एक्चुअली रेगुलेट्स इट्स पीएच। Okay, so there are basically three different mechanisms. The first is the blood buffers, the second is the respiratory regulation, and the third is the renal regulation. अब हम तीनों मैकेनिज्म्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो इस वीडियो में हम फर्स्ट टू मैकेनिज्म्स को स्टडी करेंगे, विच इज द ब्लड बफर्स एंड द रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, एंड जो थर्ड रेगुलेशन है विच इज द रीनल रेगुलेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। So बढ़ते हैं buffers of the body fluids. So what are the different types of buffers that is present in the body fluids? So the first is the bicarbonate buffer system, and the second is the phosphate buffer system, and the third is the protein buffer system. Okay, so now talking about the bicarbonate buffer system. अब bicarbonate buffer system की बात करेंगे, so ये अपने आप में ही बहुत important buffer system है। Why? Because of the following two reasons. Because of its availability and physiological regulation. ये जो buffer system है, it has become an important buffer system. अब buffers की बात करते हैं तो previous video में हमने देखा था कि buffers क्या होते हैं। These are the substances that resist the change in pH when a small amount of alkali or acid is being added. Okay, so और buffers किससे मिलके बने होते हैं? These are the mixtures of strong weak acids or its bases and its conjugate and its salt. Okay, so this bicarbonate buffer system is made up of bicarbonate and the carbonic acid. So it has bicarbonate and the carbonic acid. तो बफरिंग कैपेसिटी की बात करें तो बफरिंग कैपेसिटी को हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में कवर अप किया था। सो 65% ऑफ द बफरिंग कैपेसिटी इन प्लाज्मा एंड 40% ऑफ द बफरिंग कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ द होल बॉडी इज बीन ऑफर्ड बाय दिस बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में जो बाइकार्बोनेट कंपोनेंट है which is the basic key component, it is regulated by the kidney, so therefore it is known as the metabolic component, and therefore it is associated with the metabolic acidosis or alkalosis, which is the clinical manifestation. And then the second is the carbonic acid, which is the acid component. It is under the respiratory regulation, therefore it is known as the respiratory component, and therefore it is associated with respiratory acidosis and alkalosis. Now this slide contains an important information which you must remember. जिसमें आता है the normal bicarbonate level, तो आपको पता ही होना चाहिए। So the normal bicarbonate level in plasma is 24 millimole per liter. In terms of range, it is 20 to 26 millimole per liter. Viva में it is commonly asked. The normal partial pressure of carbon dioxide of arterial blood is 40 mmHg, and the normal carbonic acid concentration in blood is 1.2 millimole per liter, and the pKa value क्या होती है? pH at which acid is half ionized. So pKa for carbonic acid is 6.1, and the ratio of bicarbonate ions to carbonic acid at pH 7.4 is 20. Again, this is a very important information. Okay, so अगर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ना हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन के बारे में, which says pH is equals to pKa plus log concentration of salt upon concentration of acid. अब हम इसमें वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। सो pH is equals to 7.4, pKa वैल्यू है 6.1, and the concentration of salt is 24, and the concentration of acid is 1.2. So log 20 की वैल्यू है, it is approximately around 1.3. ठीक है, so LHS will be equals to RHS. Therefore the ratio of bicarbonate to carbonic acid at pH 7.4 is found to be 20.
this value is important and this value again is very very important. Now talking about the alkali reserve, कि alkali reserve क्या होता है. अब जैसे कि क्या होता है, buffers जो होते हैं वो resist करते हैं ना, तो जो बाइकार्बोनेट जो भी आपकी अवेलेबल है बॉडी में, in order to neutralize the acid load, उस अवेलेबल बाइकार्बोनेट लेवल को बोलते हैं एल्कली रिजर्व, या कितना अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो बॉडी ने रिजर्व करके रखा है इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट और रेजिस्ट द एसिड लोड, दैट इज नोन एज द एल्कली reserve. So this was about the bicarbonate buffer system. Now talking about the phosphate buffer system, which is again a very important buffer system. So it is an intracellular buffer. इसका जो concentration होता है plasma में, it is comparatively lower. pK value for it is 6.8 and the ratio of disodium hydrogen phosphate to sodium dihydrogen phosphate is 4. And this is again a effective buffer system because इसका जो pK value होता है, it is nearest to the physiological pH, which is the 7.4. When I talk about the phosphate buffer system, so ये जो phosphate buffer system है ये क्यों important है? Because it is effective at a wider pH range and it has more than one ionizable group and different pKa values. जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे H3PO4 है, इसका जो pKa value है it is 1.96, H2PO4 का pKa value है 6.8 which is closer to the physiological pH, and HPO4 का pKa value है pKa 12.4. So three of it has different pKa values and different ionizable groups. So this makes this phosphate buffer a very effective buffer system. Now the third buffer system is the protein buffer system. Protein buffer system के अंदर आते हैं albumin and the hemoglobin. Hemoglobin के अंदर in total 36 histidine residues होते हैं which is responsible for its buffering capacity. And albumin also contains an histidine ring which has the imidazole in it, which offers its a buffering action. So hemoglobin की अगर बात करेंगे तो इसको हम प्रोटीन बफर सिस्टम में भी देखते हैं and it is also important in terms of the respiratory regulation. Now talking about the second mechanism, which is the respiratory regulation of pH. So respiratory regulation is all about the game of the concentration of carbon dioxide. So respiratory regulation की अगर बात करेंगे, so it actually shows its action by altering the concentration of partial pressure of carbon dioxide. ठीक है, अगर बात करेंगे रेट ऑफ रेस्पिरेशन की या रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, सो इट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द कीमो रिसेप्टर्स. कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करते हैं. सो वेन एवर देयर इज अ काइंड ऑफ अ चेंज इन द पीएच ऑफ द ब्लड, सो दैट इज बीन डिटेक्टेड बाय द कीमो रिसेप्टर्स. कीमो रिसेप्टर्स को तुरंत से डिटेक्ट कर लेता है एंड अकॉर्डिंगली ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करता है. अगर आप देखेंगे इस फ्लो चार्ट को, तो इस फ्लो चार्ट को समझने से पहले हम दो केसेस को समझेंगे. व्हाट इज एक्चुअली एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस. तो फिजियोलॉजिकल पीएच हमने आपको बताया था ना कि फिजियोलॉजिकल पीएच का रेंज जो होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली इट इज बिटवीन 3.48 टू 3.42. कुछ बुक्स में दिया है 7.35 टू 7.45. So when the physiological or pH is below 7.38, that condition is known as acidosis, and when it is more than 7.48, that condition is known as alkalosis. ठीक है, तो ये दो conditions समझ में आ गया. अब हम समझते हैं इस फ्लो चार्ट को. So when there is a fall in pH, ठीक है, और when there is a condition of acidosis, तो क्या होगा? दैट इज बीइंग क्विकली डिटेक्टेड बाय द कीमो रिसेप्टर्स. उसको क्विकली डिटरमाइन कर लेता है और फिर ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी रेट. रेस्पिरेटरी रेट को एनहांस कर देता है. दैट इन टर्न्स रिजल्ट इन हाइपरवेंटिलेशन एंड देयर इज एन इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लंग्स. दैट इन टर्न्स लोअर द कार्बोनिक एसिड. दिस इज हाउ the condition of acidosis is being compensated by the respiratory regulation, and its vice versa occurs in terms of alkalosis. So now we'll be seeing the action of hemoglobin, that how does the action of hemoglobin is seen in terms of respiratory regulation. So hemoglobin का काम क्या होता है? Simple, ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाना लंग से, एंड देन टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को गैदर करना और उसको लंग्स तक पहुंचाना. ठीक है, तो एट द लेवल ऑफ द टिश्यूज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता है. देन इट अलॉन्ग विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस. कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक ऐसा एंजाइम है जिसके बिना एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो अधूरा रहेगा. ठीक है, सो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम पे ही पूरा का पूरा एसिड बेस बैलेंस का कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट है. ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड. फिर कार्बोनिक एसिड देन इट गेट्स एसोसिएटेड टू बाइकार्बोनेट आयंस एंड द प्रोटॉन्स.
then this proton along with the hemoglobins form H hemoglobin. Then at the level of the lungs, this H hemoglobin and oxygen again forms oxy hemoglobin, releasing the protons. अब ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन्स अगेन विद द बाइकार्बोनेट आयंस इट फॉर्म्स द कार्बोनिक एसिड. अब ये जो कार्बोनिक एसिड है इट फॉर्म्स द वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन फर्दर इज एलिमिनेटेड थ्रू द लंग्स. तो ये तो हो गया हाउ डज द hemoglobin actually shows its action. अब यहाँ पे एक बहुत ही मेजर फिनोमेना देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज द क्लोराइड शिफ्ट और इज नोन एज द हैम्बर्गर इफेक्ट, जो कॉमनली आपसे वाइवा में या शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है. ओके, सो इन शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्लोराइड शिफ्ट में होता क्या है. जैसे कि क्या होता है कि टिश्यू के लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वीनस ब्लड में जाता है, वीनस ब्लड से ये आरबीसी में एंटर आउट करता है. ठीक है, अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर लिया आरबीसी में, फिर ये क्या करता है, ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा. अब कार्बोनिक एसिड आयंस जो होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं आपके बाइकार्बोनेट में और H+ में. ठीक है, सो एट द लेवल ऑफ द टिश्यूज आरबीसी में बाइकार्बोनेट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, एंड देयरफॉर ये जो बाइकार्बोनेट है ये आरबीसी से प्लाज्मा में एंटर कर जाता है, एंड इन एक्सचेंज ऑफ इट क्लोराइड जो होता है वो आरबीसी में एंटर आउट कर जाता है फ्रॉम द प्लाज्मा टू द आरबीसी इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. समझ में आया. फिर एट द लेवल ऑफ द लंग्स इसका रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ द क्लोराइड शिफ्ट इज सीन. एट द लेवल ऑफ द लंग्स ये जो बाइकार्बोनेट है ये आपका एंटर कर जाता है आरबीसी में, ये आपका एंटर कर जाएगा आरबीसी में, एंड दिस बाइकार्बोनेट अलोंग विद द प्रोटॉन्स इट फॉर्म्स द कार्बोनिक एसिड. फिर कार्बोनिक एसिड आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, दिस इज हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड थ्रू द लंग्स. सो दिस इफेक्ट इज नोन एज द क्लोराइड शिफ्ट और द हैम्बर्गर इफेक्ट. आई होप दैट आई एम एबल टू क्लियर दिस. तो अगेन मैं समराइज कर देती हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा. तो सिंपली हमने पढ़ा था ब्लड बफर्स एंड द रेस्पिरेटरी रेगुलेशन. विद इन द ब्लड बफर्स वी हैव स्टडीड द बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड द प्रोटीन बफर्स, एंड विद इन द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म वी हैव सीन कि कैसे कीमोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं कंडीशन ऑफ एसिडोसिस और एल्कलोसिस, एंड कैसे वो कॉम्पेंसेट करते हैं, एंड द एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड द क्लोराइड शिफ्ट. सो आई जस्ट होप दैट द थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल. फिर भी अगर कोई भी क्वेरीज है आपको, मेक श्योर दैट यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड रियली बी हैप्पी टू हेल्प यू. एंड yes, please subscribe to my channel Concepts and share it with your friends also. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग.